Welcome everyone in today's class. Today we will be continue with a new topic, the kidney and lower urinary tract disease. As I asked you to go through the excretory system, about the anatomy and physiology of kidney, I hope you would have gone through these all topics. So before start the topic kidney and lower urinary tract, I would like to give you some small introduction about the anatomy and physiology about the kidney and lower urinary tract. Then you will be able to understood easily about the disease of kidney and lower urinary tract. As you know, kidney is a bean-shaped organ having two in number. Normal weight in man about 150 gram and in female about 135 gram. Hilum of the kidney is situated in the midpoint. Here many structure either enters into the kidney or leave the kidney, like renal artery, renal vein, ureter, lymphatic vessels. These all arteries either enters into the kidney or leave the kidney through the hilum. Cut section shows three part of the kidney. This part is called renal cortex. See, this is the renal cortex, and this one is called renal medulla. This is the medullary part of the kidney, renal medulla up to here. And this yellow part you can see in the picture, this yellow part, this is called renal sinus. So kidney divided into three part: renal cortex, renal medulla and renal sinus. And all the renal sinus reunite to form renal pelvis. This part is called renal pelvis, and from here the renal pelvis unite to form a ureter and leave the kidney. See, so this all things you have seen about the kidney, inner part of the kidney, three parts. Now we'll see about the structural and functional unit of kidney. As you would have studied in the first year in physiology about the nephron. Nephron is called structural and functional unit of the kidney. About 1 to 1.3 millions of nephrons situated in the kidney. See, this is the, I have drawn here, this is the one nephron like this, and this is the tubular part of the nephron like this. See, like this. 1 to 1.3 millions of nephrons situated in the within the kidney like this. This is the one nephron I have drawn here like this. 1.3 millions of nephron. It is hair-like structure within the nephron, within the kidney. Nephrons are the hair-like thin structure situated within the kidney. This is the structural and functional unit of the kidney. तो नेफ्रॉन का क्या काम है आप जानते हैं, इसी में ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद इससे ये ट्यूब्यूल्स के द्वारा यूरिन बनता है. यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ये रीनल साइनस में जमा होता है और रीनल साइनस में ये फिर भरने के बाद यूरेटर होते हुए इस तरह से, है ना, यहाँ से बाहर निकल जाता है. यहाँ थोड़ा सा हम लोग रीनल सर्कुलेशन के बारे में भी देखेंगे. आप जानते हैं किडनी में ब्लड किसके द्वारा जाता है, रीनल आर्टरी के द्वारा. ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी किसका ब्रांच है, डायरेक्ट एब्डोमिनल आयोटा का ब्रांच है रीनल आर्टरी, है ना. रीनल आर्टरी से ब्लड गया किसमें, किडनी में. रीनल आर्टरी एज सुन एज एंटर्स इनटू द kidney it is divided into so many segmental artery. This is called segmental artery. रीनल आर्टरी का कितना पार्ट्स हो गया, ये सेगमेंटल आर्टरी में बहुत सारा सेगमेंटल आर्टरी में बट गया. अब सेगमेंटल आर्टरी अगेन डिवाइडेड इनटू इंटरलोबार आर्टरी. ये दो लोब के बीच में जो ये सेगमेंटल आर्टरी निकला इसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी. अब इंटरलोबार आर्टरी फिर क्या चीज़ में बदल गया, है ना, ये रीनल आर्टरी divided into so many small branches. It is called
इंटरलोबार आर्टरी, दो लोब के बीच में इंटरलोबार आर्टरी, ये देखिए छोटा छोटा लोब्स के बीच से निकला है तो इसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी अगेन देखिए ये जो लोब्स है इसका ये बेस और ये एपेक्स, ये एपेक्स और ये बेस, तो बेस के पास आकर के ये इंटरलोबार आर्टरी इस तरह से इसके हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल इस तरह से गया, इसको क्या बोलेंगे आर्कुएट आर्टरी, है ना। और आर्कुएट आर्टरी से बहुत सारा इस तरह से परपेंडिकुलर ब्रांच निकला है यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर आर्कुएट आर्टरी के ये परपेंडिकुलर ब्रांच निकला है, इसको क्या बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। ये इंटरलोबार आर्टरी, बड़ा लोब के बीच से जो निकला इंटरलोबार आर्टरी, और यहाँ पर छोटा छोटा लोब, अब कौन सा लोब आप जानते हैं, यहाँ पर नेफ्रॉन, ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट, है ना। तो रीनल कॉर्टेक्स में जाकर के ये इंटरलोबुलर आर्टरी में बट गया, और इंटरलोबुलर आर्टरी से बहुत सारा छोटा छोटा ब्रांच निकला है जो कि ग्लोमेरुलस के बीच से ग्लोमेरुलस में जाता है, और इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। तो क्या बन गया अब ये रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से ये बहुत सारा ब्रांचेस निकला परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी, छोटा छोटा लोब्यूल्स के बीच से जो निकला इंटरलोबुलर आर्टरी, और लोबुलर्स में जाकर के ये एफरेंट आर्टरियोल्स, इससे छोटा छोटा बहुत सारा ब्रांच निकला, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। और एफरेंट आर्टरियोल्स कहाँ सप्लाई देता है, कहाँ ब्लड लेके जाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स से ब्लड जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। ये देखिए आपको याद होगा, है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल्स, इससे बहुत सारे एफरेंट आर्टियोल as soon as it enters into the Bowman's space it is divided into so many small capillaries। कैपलरीज में क्यों बढ़ता है, क्योंकि छोटा छोटा कैपलरीज में बढ़ने के बाद इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, इसी प्रेशर से ये फिल्टर होता है। यहाँ फिल्टर होने के बाद ये फिल्ट्रेट पार्ट कहाँ आ जाता है, ये बोमेन स्पेस में आ जाता है। अगर इसमें प्रेशर नहीं हो ज़्यादा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आप जानते हैं ब्लड से क्या फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड में जितना भी वेस्टेज है, जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस, दिस ऑल सब्सटेंस हैव टू फिल्टर इन द बोमेन्स कैप्सूल, इन द बोमेन्स स्पेस। समझ गए। तो ये सारा एफरेंट आर्टरियोल्स जब बोमेन्स स्पेस के अंदर आया तो क्या बन गया, छोटा छोटा कैपलरी में डिवाइड हुआ, फिर ऑल द कैपलरी रीयूनाइट टू फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल्स। ये देखिए सारा कैपलरी फिर रीयूनाइट होकर के क्या बन गया, इफरेंट आर्टरियोल्स। और इफरेंट आर्टरियोल्स जो है ये ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ इस तरह से, है ना, ये कैपलरी बनाता है इस तरह से, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ही मूव करके, इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। क्या बोलते हैं, चूँकि ये ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ इस तरह से मूव करके निकला है इसलिए इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपलरी। और पेरी ट्यूबुलर कैपलरी फिर से रीयूनाइट होकर के ये देखिए ये इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ये एक थिक वेसल्स बनाता है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, है ना। वासा रेक्टा इसके पैरेलल में इस तरह से चलता है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा फिर से रीयूनाइट होकर के, है ना, ये क्या बना दिया, पेरीट्यूबुलर वेन। अब यहाँ से वेन शुरू हो गया, ये पेरीट्यूबुलर वेन, और पेरीट्यूबुलर वेन रीयूनाइट टू फॉर्म इंटरलोबुलर वेन, है ना। इंटरलोबुलर वेन के बाद फिर जैसे जैसे ये आया था उसी तरह फिर वापस चला जाता है ना। इंटरलोबुलर वेन, फिर आर्कुएट वेन, आर्कुएट वेन के बाद इंटरलोबार वेन, फिर सेगमेंटल वेन, रीनल वेन और इंफीरियर वेना का हमें जाके मिल जाता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कैसे रीनल सर्कुलेशन होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किडनी, ब्लड सर्कुलेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रीनल आर्टरी किसका ब्रांच है, एब्डोमिनल आयोटा का ब्रांच है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर जाता है क्या चीज़ में बढ़ जाता है, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी जो है इसे ये लोब्स के बीच से निकलता है इसलिए इसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी जब लोब के बेस से पैरेलल निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी, है ना। आर्कुएट आर्टरी ये कहाँ चला जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में, है ना।
आर्कुएट आर्टरी से बहुत सारा परपेंडिकुलर आर्टरीज ब्रांच निकलता है, उसको बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, एक इंटरलोबार आर्टरी, बड़ा सा लोब के बीच से निकला तो इंटरलोबार आर्टरी, उसके बाद आर्कुएट आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबुलर आर्टरी, छोटा छोटा लोब्यूल्स में जब ये जाता है, लोब्यूल्स के बीच से निकलता है तो इंटरलोबुलर आर्टरी। और इंटरलोबुलर आर्टरी का ही बहुत सारा ब्रांच है जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया। और एफरेंट आर्टरियोल से क्या बना, बहुत सारा छोटा छोटा कैपिलरीज जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ऑल द कैपिलरीज reunite to form efferent arterioles and leave the Bowman's space। efferent arterioles के बाद ये वासा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरिट्यूबुलर चूँकि ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ होके निकला है इसलिए इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा बोलते हैं। और ये सारा वासा रेक्टा रीयूनाइट टू फॉर्म पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, और ये सारा वेन्यूल्स फिर से जैसे आया था उसी तरह से ये वापस बाहर आता है वेन बन करके, इंटरलोबुलर वेन, उसके बाद आर्कुएट वेन, या आर्कुएट आर्टरी था तो आर्कुएट वेन, उसके बाद इन्फेरियर इंटरलोबार वेन, उसके बाद सेगमेंटल वेन, उसके बाद रीनल वेन बन के ये किडनी से बाहर निकल गया, है ना। और ये फिर जाके कहाँ मिल गया, इन्फेरियर वेना कावा में, और फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में। तो ये है रीनल सर्कुलेशन।